Hello, my dear students. I hope you all are fine and sound. So, in today's session, we are going to study electrostatic, and this is the very first chapter of class 12 physics. Okay. So, what does electrostatic mean? Okay. So, the word electro means electron, study of electron, and static means which are at rest. Okay. So, what is electrostatic mean? So बच्चों the branch of physics which deals with the study of charges at rest, okay, is known as electrostatic. Okay. Although electrostatic is a sub branch of electromagnetism. So and electromagnetism cover more than nearly 50% of your physics syllabus in class 12. So बच्चों देखो electromagnetism, okay, is divided into categories. First one is electrostatic, and second one is electrodynamics. So in electrostatic, we study or we deal with the study of electrons which are at rest. Okay. So electron at rest. And in electrodynamics, we deal with the electron which are in motion. Electron in motion. Okay. So this word electron is basically comes from nearly around 600 BC from Greek. It has been discovered in Greek that when a piece of amber, which is a metal, get rubbed with wool, okay, it acquires some amount of charge, okay, and when this amber is being towards some object, started attracting some small object, okay. So let us suppose these are piece of amber, okay, these are piece of amber or rod of amber, okay, and when we rub wool over it, when a piece of wool is rubbed over it, then what happens? This rod gets charged. Okay, this rod gets charged due to friction. Okay, अपन आगे देखेंगे कि कितने टाइप की मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने की. ओके, कितने तरीके से चार्ज किसी बॉडी पे एक्वायर होता है वो अपन अभी आगे देखेंगे. तो इन एंशिएंट ग्रीक जब उन्होंने जो सिल्क सॉरी वूल वूल को अंबर पे रब करा, तो जो वो अंबर की जो रॉड थी वो चार्ज होती और वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगी. ओके, सो एक्चुअली अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ई एल ई के, इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ओके, इन ग्रीक amber is basically used to call electron. So that's why from this electron the word electron has been tried. ओके बच्चों, इतना समझ में आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी है इसकी चार्जेस एट रेस्ट. ओके, तो अब आप लोग पूछेंगे कि सभी चार्ज क्या है. मतलब चार्जेस, मतलब चार्जेस, मतलब चार्जेस. तो चलो चार्ज क्या है. चार्ज आर द फंडामेंटल एंटिटीज. ओके, these are the fundamental entities just like mass. Okay, so charges are the entities. These are the entities which are fundamental just like mass. Which are fundamental just like mass. Okay, charges can be fundamental entity जैसे mass है. Unlike mass, but there is a difference between charge and mass. Unlike mass,
charges can be positive, charges can be positive as well as negative. Okay, चलो whether we know that mass is always positive. तो चार्जेस क्या है? चार्जेस वो एंटिटी है, ओके, वो बीच में फंडामेंटल जस्ट लाइक मास, ओके, बट डिफरेंस क्या है कि अनलाइक मास चार्जेस के भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट मास क्या होता है चलो हमेशा, जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। फिर अच्छा इसकी अपन ये भी कह सकते हैं, ओके, कि चार्जेस आर द, मतलब इसकी सेकंड डेफिनेशन में बताऊं आप लोगों को, देखिए चार्जेस आर द इंट्रिंसिक, चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो अभी इंट्रिंसिक का क्या मतलब हो गया, चलो देखिए आपको, इंट्रिंसिक का मतलब हो गया, ठीक है, मतलब जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, ये मतलब चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, तो ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस। जैसे मास, हमें पूछो मास क्या है, तो मास मास है, ओके, तो सिमिलरली, ओके, चार्ज क्या है, चार्जेस एक एंटिटी है जिसे मास होता है, ठीक है, फर्क कितना होता है कि मास ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ओके बच्चों, तो ठीक है। अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो अपने को भी पढ़ना है, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्जेस। So properties of charges, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो चलो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, while unlike charges attract each other, ओके बच्चों, लाइक चार्जेस क्या कैसे करते हैं, जैसे आपने दो दो चार्ज लिए, लेट सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज दिया आपने पॉजिटिव, एक और चार्ज दिया पॉजिटिव, दोनों आपस में आप एक दूसरे के आपने करीब करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, सिमिलरली दो नेगेटिव चार्ज थी उनको आपने पास में लाने की कोशिश करी, तो ये दोनों ये क्या करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, ओके। और अगर अपनों ने अनलाइक चार्जेस को आपस में, ये एक अनलाइक चार्ज यहाँ रखा, एक अनलाइक चार्ज यहाँ रखा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आपको नाम से समझ में आएगा, ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये तो बचपन से अपन पढ़ते हैं, ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके, energy can neither be created nor it can be destroyed. Similarly, charge are also conserved. Okay, so charges can neither be created, can neither be created nor they destroyed, nor they destroyed. But they can transform from one body to other body. ठीक है, चार्ज ना तो बच्चे लोग क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब चार्ज वैसे तो हम बहुत सारी ऐसी मेथड होती है जिसकी हेल्प से अपन बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो चार्ज कहीं से आता नहीं है, वो बॉडी का ही चार्ज होता है, ओके, मतलब ऐसा कुछ होता है कि बॉडी के अंदर के जो है, बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है,
तो इस वजह से वो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे यार केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि NaCl, लेट अस सपोज, ओके, NaCl क्या है? NaCl इज अ सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट। और क्या होता है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ओके, और वो किसको देता है? Cl को देता है। तो Na के ऊपर क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो ये कहीं और से नहीं आया है, वो उसी के पास था। एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी बॉडी होती है दुनिया की, वो सिर्फ स्टेबल फॉर्म में होती है। ठीक है, सारी बॉडीज कैसी होती है? स्टेबल होती है, न्यूट्रल होती है, व्हिच मींस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो उसमें बराबर होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी न्यूट्रल होती है। बट अगर हमने क्या करा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो, इसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो आपने केमिस्ट्री में NaCl देखा हो, तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, ओके, डोनेट कर देता है, इसलिए Na के ऊपर क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाता है, इसलिए Na पॉजिटिव। और Cl पहले न्यूट्रल था, फिर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन Na से ले लिया, सोडियम से ले लिया, तो Cl के ऊपर एक ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ओके। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों, ठीक है। ये चार्जेस दिख रहे हैं, चार्जेस इस तरह आते हैं, मतलब कहीं और से वो क्रिएट नहीं होते, वो वहाँ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे, इलेक्ट्रॉन ले लें या दे दें, उसकी वजह से वो चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है। यदि अपन देखेंगे उसको, ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Okay, charges are conserved, which means charge can neither be created nor they destroyed, but they can transform, they can transform, but they can transform from one body to another. Okay, from one body to another. But क्या होता है कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकते हैं, ओके। तो ये एक और प्रॉपर्टी थी। चलिए आगे चलते हैं, और प्रॉपर्टी देखते हैं अपन चार्जेस। The next property is conservation of charge. ठीक है, सॉरी, conservation of charge हम देखते हैं, quantization of charge देखते हैं। अच्छा, उसके पहले चलिए देखिए इसको, और मैं अभी जो अपने देखा conservation of charge, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, conservation of charge का मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि in an isolated system, ठीक है, isolated system मतलब जो सिस्टम मतलब तनाव, ठीक है, मतलब जिसमें कोई चीज ना जा सकती हो ना वहां से आ सकती, निकल सकती हो, ओके। Such type of system is isolated system. In an isolated system, okay, in an isolated system, total charge is remain constant, okay, remain constant, ठीक, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे डेटा सपोज मैंने आइसोलेटेड सिस्टम लिया, जिसके अंदर मैंने डेटा सपोज ये तीन बॉडी रखी, ठीक है, जिनके ऊपर बॉडी तीनों कंडक्टर हैं, तीनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस, डेटा सपोज इसके ऊपर प्लस टू चार्ज, डेटा सपोज इसके पास -3 चार्ज है, एंड डेटा सपोज इसके पास +2 चार्ज, मैंने क्या करा बच्चों, इस बॉडी को लिया, एक आयनिक सिस्टम को लिया, और मैंने इसको जो है शेक कर दिया, बहुत अच्छे से शेक कर दिया। तो फिर मैंने देखा तो सिस्टम कुछ ऐसा दिखा है, ओके। मैंने अच्छे से इसको शेक करा, फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर +1 चार्ज देते हैं, ओके, डेटा सपोज यहाँ पर -3 चार्ज देते हैं। तो ये चार्ज कितना है क्या हम बता सकते? ये चार्ज कितना? तो बहुत सिंपल है बच्चे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो हमेशा कंजर्व रहे, ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहे। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे? ये +2, ये -3 और ये +4, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? +1 चार्ज, ठीक ना। अब इधर कितना है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो 1 -3 + x, ओके। इधर देखिए 1 - 3 -2 + x। अब इधर कितना आ रहा है? +1, उधर कितना आ रहा है? -2 + x। तो x को कितना होना चाहिए? तो x शुड बी 3। अगर x जो है अगर 3 हुआ, तब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये सिस्टम दोनों जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव करेंगे, ओके। तो x की वैल्यू क्या होगी? x शुड बी, ठीक है, इस बॉडी पे 3 चार्ज होगा, 3 यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। तो आई होप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी, व्हिच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो अपन देखते हैं।
तो बच्चा क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो इस मतलब ऐसी चीज जिसको हम उसके उसके फंडामेंटल यूनिट से डिफाइन कर सकें, उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल होती है, ओके, दीवार होती है, तो दीवार का बेसिक या फिर मैं यूं बोलूं कि एक दीवार है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो आप लोग बोलेंगे कि सर स्मॉलेस्ट यूनिट एक दीवार की वो एक ईंट होती है, करेक्ट? तो एक ईंट होती है, उस सेम उसी ईंट से मिल के एक दीवार बन जाती है, ठीक है? इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये क्वांटाइज है, ठीक है? वॉल इज क्वांटाइज, ठीक है? सिमिलरली बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती है जो क्वांटाइज होती है, बहुत सारी क्वांटाइज नहीं होती है, ओके? फॉर एग्जांपल जैसे जैसे अपन देख लें बहुत सारी चीज़ होंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अपन किसी लिक्विड की बात करें, मैंने बोला क्या मिल्क क्वांटाइज है, तो मिल्क क्वांटाइज नहीं है, करेक्ट? क्योंकि हम उसकी बेसिक यूनिट ऐसी बता नहीं सकते, ओके? उसमें से मतलब अलग नहीं कर सकते, बेसिक यूनिट उसकी बताएंगे। और एग्जांपल ले लें अपन क्वांटाइजेशन का, तो लेट अस सपोज मैं जैसे अपन मैं बोलूँ बनाना, तो बनाना है ना, तो एक बनाना, ठीक है, एक डजन का एक 1 डजन बनाना, तो दे आर 12 बनाना इन 1 डजन बनाना, तो ये क्वांटाइज है, ओके? समझ गए? मतलब क्वांटाइजेशन क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसको आप स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम बोलेंगे कि क्वांटाइज, ठीक है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सबसे पहले क्वांटाइजेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है? when a quantity is represented in its smallest unit, okay? जब किसी क्वांटिटी को हम स्मॉलेस्ट यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट इन its smallest unit, and this unit is known as quantization, is known as quantization। अब हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन, ठीक है? अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब चार्ज इज क्वांटाइज है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि चार्ज भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में यानी प्रेजेंट होता है, यानी जितना भी चार्ज है जहाँ पे भी है, जिसकी बॉडी पे जो भी चार्ज है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज से मिलकर बना है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है वो आप देखिए। ये तो मैंने आपको क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन समझाई कि क्या होता है क्वांटाइजेशन, ठीक समझ गए? ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए, तो ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है, क्वांटाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूँगा, देखिए टोटल चार्ज ऑन बॉडी कैन बी गिवन as integral multiple of integral multiple of total charge on a body can be given as integral multiple of smallest total charge on a body can be given as integral multiple of smallest unit of charge, that is yeah, smallest unit of charge यानी fundamental unit of charge लिखते हैं, तो total charge की fundamental unit होती है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो total charge on a body can be given as integral multiple of fundamental unit of charge, ठीक? fundamental unit of charge, okay? So किसी बॉडी पर कोई चार्ज है q, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज q इज द चार्ज ऑन बॉडी and we know that charge is quantized, so we can say that q equal to ne, okay? तो जो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे होगा वो इसी फॉर्म में होगा, यानी या तो 1 e के बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ओके? व्हाट इट मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो हाफ हो, 1/4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, ऑल्दो
experimentally it has been found that 1/4 uh, amount of electronic charge and 2/3 amount of electronic charge can also be exist, can also exist, ठीक है, बट ये एग्जिस्ट करता है लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना भी चार्ज किसी बॉडी पे होगा वो टोटल चार्ज हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ई। और आप सभी को मालूम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ओके, तो 1 ई हैव 1.6 into 10 to the power minus 19 kilomole। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 kilomole चार्ज। ओके बच्चों, आई होप पोटेंशियल ऑफ चार्ज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें, ठीक है, चलिए। तो अगर ऐसा बोला जाए कि किसी बॉडी को, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा कैसे दिया गया है, टेन अ चार्ज ऑफ going to 10 to the power minus 18 कूलम। ओके, एक चीज ये भी जब ओके यहाँ चार्ज में लिखा है, वहाँ ये भी लिखो कि जो चार्ज है बच्चों उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। मैं ये लिखा हूँ, चलिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, 1 कूलम, ठीक है, कूलम होती है। ये सही में चार्ज, ओके। तो क्वेश्चन ये है ना, चार्ज ऑफ 12 into 10 to the power minus 18 coulomb is given to a body। क्या किसी बॉडी को 12 into 10 to the power minus 18 coulomb ऑफ चार्ज दिया जा सकता है टू अ बॉडी। तो देखते हैं फिर किया जा सकता है कि नहीं है। ना हम जानते हैं कि चार्ज क्या है, कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट, वी कैन रिप्रेजेंट इनटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज कितना दिया गया है, तो चलो उसका चार्ज दिया गया है 12 into 10 to the power minus 18 कूलम। ओके, नाउ ई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। यहाँ से n की वैल्यू निकालें, अगर n की वैल्यू इंटीजर है, इसका मतलब n की वैल्यू इंटीजर है तो ही सही है, मतलब इतना चार्ज दिया जा सकता है। और n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वो आधा ओम ओवर ढाई समथिंग ऐसा कुछ आया 1.5 2.7 9.3 ऐसा कुछ आया, ओके, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये चार्ज किसी बॉडी को नहीं दिया जाता। ओके बच्चों, तो देखिए n is equals to हो गया 12 into 10 to the power minus 18 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। 10 to the power minus 18 पे 10 to the power minus 19 मिलता है, यहाँ पर एक 10 to the power minus 1 बच जाएगा, उसको ऊपर पहुँचा दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी, चलिए यहाँ ये कर लेते हैं, चाहिए कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 10 ये इसका, तो माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 8 10 हो जाएगा, नीचे का बचेगा 16। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे, देखिए 4 3 12 4 4 16 एंड 4 into 25 is 100। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इंटीजर आएगी, अलग लिखिए, ठीक है 75 आ गई, ठीक है। तो ये इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू यस, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये अगर इसका आंसर पूछते हैं हम क्या बोलेंगे, यस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अस, हम क्या बोलते हैं, यस, आंसर क्या होता है हमारा, यस दिस अमाउंट ऑफ, यानी जो उन्होंने गिवन किया दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अस, ये दिया जाता है। हमने कैसे निकाला, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से निकाला, चलो कैन बी गिवन टू अस। ओके, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अपनी
यहाँ पर यहाँ तक प्रॉपर्टी होगी। चलिए अब आगे क्या देखना, अब आप आगे आप लोगों को देखना चार्जिंग मेथड्स देखना है, चार्जिंग मेथड्स देखना है। अच्छा ये बात ध्यान रखें, यदि लोग जाके लिख तो कि चार्ज तो क्वांटाइज है बट मास क्वांटाइज नहीं है। आप कुछ सोचिए ना, क्या मास क्वांटाइज है? मास की के लिए एक बेसिक यूनिट है, वो तो फंडामेंटल यूनिट है जिसके हेल्प से किसी बॉडी का टोटल मास बताया जा सकता है। ठीक है, मतलब मास कुड बी फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, मास इंटीजर भी हो सकता है। तो मास इज नॉट क्वांटाइज। ठीक है ना, और ये या फिर ये बोला जा सकता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी प्रूव्ड। तो दो टाइप के लिए क्या ये क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, quantization of mass is yet to be proved, is yet to be ओके बच्चों लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब हम क्या देख रहे थे, चार्जिंग मेथड्स देख रहे थे। इसको मिटा देते हैं, हम क्या देख रहे थे, चार्जिंग मेथड। कौन कौन सी मेथड है जिनके हेल्प से अपन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? ठीक है, चार्जिंग मेथड्स। पहली मेथड किसी बॉडी को चार्ज करने की, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या बच्चे? डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक, तो दो कंडक्टर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा तो चार्ज एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या इसको समझ, लेट अस सपोज मेरे पास एक बॉडी थी ए जिसके ऊपर लेट अस सपोज +4 कूलम का चार्ज है। तो एक बॉडी लेकर आया बी जो न्यूट्रल, ठीक है बच्चों, न्यूट्रल और मैंने इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट में कर दिया। दोनों को एक दूसरे से इन्हें मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं दोनों को एक दूसरे से चिपका दिया तो क्या होगा, और फिर मैंने जब मैं चिपका दूंगा तो ये बॉडी तो न्यूट्रल, तो इस बॉडी के पास +4 कूलम चार्ज था। तो क्या होगा, कुछ चार्ज इसका बॉडी ए बॉडी का वो बी पे चले जाएगा। कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा इस बी बॉडी की शेप, साइज और इसके मटेरियल किस मटेरियल का। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें लेट अस सपोज कि जो बी है ये आइडेंटिकल है, मतलब ए बॉडी जिस शेप और जिस साइज और जिस मटेरियल की है उसी शेप उसी साइज और उसी मटेरियल की भी बॉडी है। ओके, तो अगर ऐसा है तो बच्चा फिर क्या होगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, तो जब आप इसको कांटेक्ट में एक दूसरे इन दोनों एक दूसरे टच कर देंगे, टच करने के बाद दूर कर देंगे। पहले ए के पास +4 कूलम चार्ज था, बी न्यूट्रल था, लेकिन टच करने के बाद जब अलग करेंगे तो क्या देखेगा, ए के पास +2 कूलम का चार्ज था तो बी के पास भी +2 कूलम का चार्ज आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लग रहा है। क्या बोला गया था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, द टोटल चार्ज इज कांस्टेंट इज रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इन दोनों को टच नहीं कर रहा था तो टोटल चार्ज कितना था, +4 कूलम था। इसके बाद तो न्यूट्रल जीरो जीरो चार्ज, फिर टच करने के बाद कितना हो गया, +2 अगेन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पर चार्ज यहाँ पर प्रूव हो रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बाय कंडक्शन अपन क्या कर सकते हैं, एक बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर चार्ज को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब अगेन यहाँ पर ये चार्ज है, ये कहीं और से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो इसी का चार्ज इसने ले लिया। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने जो हमने यस जो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कैन बी, तो चलो वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि +2 कहीं और से आया है। ठीक है, कोई नहीं सा है, इसी सिस्टम के अंदर जो चार्ज रखे तो उसी की शेयरिंग से ये हुआ। चलिए, तो बाय कंडक्शन सेकंड मेथड है बच्चा लोग इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस। ठीक है, चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है, एक दूसरे के करीब होते हैं बट कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है ना, तो इंडक्शन है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखिए।
ऐसे सपोज मेरे पास चलो ए बॉडी, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर प्लस ऐसे सपोज प्लस 4 कूलम का चार्ज मिनिमम। ओके, अब मेरे पास मैंने एक और बॉडी ली, बी बॉडी, ठीक है, बी बॉडी, ठीक है, जो न्यूट्रल, जो न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्रोटॉन भी, वो न्यूट्रल इसलिए तो उसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी दोनों का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो न्यूट्रल है। यानी नंबर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नंबर ऑफ चार्ज एंड प्रोटॉन वो दोनों बैलेंस हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा जब ये बॉडी तो टोटली पॉजिटिवली चार्ज प्लस 4 कूलम, अब मैं इसको इसके करीब लाऊंगा, टच नहीं करूंगा, इसके करीब लाऊंगा तो होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बी, जो बी आपका जो कंडक्टर है उसके इस साइड पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पर प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन जो है यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर प्रोटॉन अरेंज हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अरेंज। अब अगर मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, मैथमेटिकल कर देते इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ग्राउंड कर दिया तो अर्थ कर दिया, हम ये मानते हैं कि अर्थ जो होता है, अर्थ के पास जो है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ इज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थ इज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इन प्रोटॉन को क्या करेंगे, ठीक है, इन प्रोटॉन से वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये जो बी बॉडी है, बी बॉडी उसके ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए पहले ये न्यूट्रल थी बच्चों, हमें एक चार्ज बॉडी को इसकी कंडीशन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो गई, ये देखिए कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले न्यूट्रल थी बॉडी, उसके अंदर प्रोटॉन भी थे इलेक्ट्रॉन भी थे, ठीक है, लेकिन इक्वल अमाउंट में थे, ठीक है, तो बॉडी न्यूट्रल थी। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास है तो इस पॉजिटिव चार्जेस ने क्या करा, इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो वो अब चूंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो वो ट्रांसफर तो हो नहीं सकते, ओके गॉट इट। तो क्या हुआ, जब ये इसके कांटेक्ट में आई तो ये जो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, लेकिन वहाँ प्रोटॉन भी, तो प्रोटॉन उसके अपोजिट साइड पे अरेंज हो जाएंगे, और हमने क्या कहा कि वो जो जिस साइड पे प्रोटॉन आए उसको ग्राउंड करें, तो ये सारे जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएंगे, या फिर ऐसा बोले कि उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अर्थ का जो ग्राउंड जो करा है मैंने, अर्थ करा है, अर्थ के इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आप बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्शन के आप लोग आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इंडक्शन के आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और मेथड होती है बच्चों जिससे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, अब वो भी देख लेते हैं, वो मेथड क्या है। तो चलो वो मेथड है बाय फ्रिक्शन, वो मेथड क्या है, थर्ड मेथड बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो आपने एक बॉडी ली और एक दूसरी दो बॉडी ली, एक बॉडी को एक बॉडी पर रब करा, ओके, आपने रब करा, तो रब करने से क्या होता है, एक थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, व्हाट इट, भाई आप रब कर रहे हैं, आप दोनों हाथों को भी एक दूसरे से ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा, ये हाथ गर्म होना शुरू होते हैं, हीटअप होना शुरू हो जाते हैं, करके देखिए, ठीक है। अभी आप करके देखिए, इस हाथों को ऐसा करिए 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 करिए, तेजी से करिए, तो यहाँ पर एक यानी आपको एनर्जी सी महसूस होगी, गरम गरम लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये आप जब दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। अब जब थर्मल एनर्जी जनरेट हो गई तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वो थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन भैया क्या करते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिली वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। तो चलो जैसे मैंने एक बॉडी ली, तो एक बॉडी, ठीक है, या फिर मैंने क्या करा, एक प्लास्टिक रोड ले, मतलब जो एग्जांपल आप कहीं से भी लिखोगे लेकिन वहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। मैंने एक प्लास्टिक की रोड ली, ठीक है, चलो ये मेरे पास प्लास्टिक की रोड, ठीक है, और मैंने क्या करा, एक फर फर आता है, एनिमल फर, ठीक है, एनिमल फर, ठीक है, एक मटेरियल है फर, ओके। इस फर को मैंने इस पर रब करा, इस फर को मैंने क्या करा, इस पे रब करा, और रब करने के बाद जब मैं इसको हटाऊंगा, ये रब कर दिया, तो रबिंग की वजह से क्या होगा बच्चों,
जब मैं रब करूँगा तो थर्मल एनर्जी डेफिनेटली जनरेट होगी। तो जब दोनों हाथ को एक दूसरे से अपन फ्रिक्शन यानी एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एनर्जी जनरेट होगी। जनरली इस फर को ये फर ठीक है, एनिमल फर वही प्लास्टिक बोर्ड ये दोनों एक बोर्ड ठीक है मोटे ठीक है। जब मैं इसको इस पे रब करूँगा तो क्या होगा, इसके अंदर थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। तो क्या करेगी, थर्मल एनर्जी जनरेट हुई तो वो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके जंप कर जाएंगे ठीक है। तो अगर लेट अस सपोज इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इस तो ये फर्क है दो बॉडी थी, अगर इसने वो थर्मल एनर्जी लेकर इसके इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेके निकल गए तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज होगी ठीक। तो क्या होता है कि प्लास्टिक को नेगेटिवली चार्ज होता है, प्लास्टिक रोड कितनी चार्ज रहती है नेगेटिवली चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग द फ्रिक्शन। मैं इसको एक बार फिर बताया तो दो बॉडी को एक दूसरे से रब करके थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑर्बिट होती है ठीक है, जिस ऑर्बिटल में वो मूव करते हैं ठीक है, जैसी इनको एनर्जी मिलती तो वो हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं या फिर वो ठीक है समझ लो ठीक है वो एक्साइट कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए तो पहले तो बॉडी न्यूट्रल थी, उसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे। लेकिन जब कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर थर्मल एनर्जी लेकर एक्साइट कर गए तो बॉडी किस हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज ठीक है। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज जाएगी जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन गए हैं ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके बच्चों, तो आज तक के लिए इतना। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल करते हैं हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील्स और वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट ओके। तो रुके हुए चार्जों को जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कहलाता है ओके। और अगर चार्ज मोशन में उसकी स्टडी करेंगे तो वो जो ब्रांच है जिसकी उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहा जाता है। तो आगे देखो कि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है चार्ज आ रहा है सब कुछ चार्ज से होगा ठीक है। चार्ज रुके हुए तो चार्ज क्या है, तो चार्ज एक एंटिटी जैसे मास होता है ठीक है। बस फर्क ये होता है कि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है बट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चलो नेगेटिव भी हो सकता है ओके ओके ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी आज की क्लास में। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी कि भैया लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रेफर करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बात खत्म। अगली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि भैया जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं ठीक है। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो वो सिस्टम के जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा वो कंजर्व होगा ठीक है। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देखा ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड खत्म। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले क्वांटाइजेशन देखा। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि हम किसी क्वांटिटी को अगर आप बेसिक यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके, बेसिक यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि भैया ये क्वांटिटी क्वांटाइज। इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई एक बॉल है ठीक है। तो ये बॉल कैसे बनी, किसी पूछो ये बॉल कैसे बनी, क्या बोलेगा, अगर कोई समझदार होगा ठीक है, छोटा बच्चा भी होगा तो थोड़ा कुछ समझदार होगा तो क्या बोलेगा कि सर जो वॉल है वो ब्रिक से बनी। तो ब्रिक क्या है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ठीक है, उस वॉल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ठीक है। तो सिमिलरली दुनिया में जो भी बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज है ठीक है, तो वो चार्ज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज से जो कि है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम कूलम का चार्ज होता है। अच्छा कूलम क्या है, कूलम SI यूनिट है चार्ज ओके। यहाँ तक हो गया ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद बच्चों हमने देखा मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमने क्या देखा, 3 मेथड है चार्जिंग। पहली मेथड क्या थी, तो पहली मेथड थी कंडक्शन यानी डायरेक्ट कांटेक्ट। दो बॉडी, एक बॉडी चार्ज थी एक बॉडी न्यूट्रल थी है ना। और लेट अस सपोज दोनों का सेम साइज बराबर था और सेम मटेरियल की बनी हुई थी, हमने दोनों को एक दूसरे को कांटेक्ट में लेकर टच कर दिया, थोड़ी देर टच करने के बाद अलग कर दिया तो क्या होगा कि जो चार्ज है पहली बॉडी का वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा ठीक है। इसके ऊपर +4 है तो उसके ऊपर चार्ज मतलब टच करने के बाद जब देखेंगे तो इसके ऊपर भी +2 इसके ऊपर भी +2 आएगा। गॉट इट, ये हमने देखा। ये तो पहली मेथड थी कंडक्शन। फिर हमने क्या देखा, सेकंड मेथड इंडक्शन मेथड है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसमें क्या होता है, बॉडी को टच नहीं करते बल्कि एक बॉडी को एक बॉडी के पास लाते हैं ठीक है। तो ऐसा यानी टच नहीं, कांटेक्ट में नहीं होते, एक दूसरे से थोड़े से दूर होते ठीक है। तो लेट अस सपोज एक बॉडी न्यूट्रल है और एक बॉडी चार्ज। अभी जो चार्ज बॉडी क्या करेगी, ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, जो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं अगेन में बोल रहा हूं चलो, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं ओके। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होते हैं
ठीक है। लेकिन न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, इसलिए वो बैलेंस है, उसके नेगेटिव चार्ज उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, बट इक्वल अमाउंट में, इसलिए वो बैलेंस है। लेकिन जब एक बॉडी उसके पास रखी जाएगी, ऑलरेडी सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। और हमने पढ़ा है कि अनलाइक चार्ज अटैक ईच अदर, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा, तो जो बॉडी है सेकंड बॉडी न्यूट्रल बॉडी, उसका नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा, एक साइड पे अलाइन हो जाएगा, तो हमने देखा डायग्राम में, मैंने आपको बताया। तो उसके दूसरे साइड क्या आ जाएगा, उसकी दूसरी साइड जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमने फिर उसको पॉजिटिव चार्ज क्या करा, ग्राउंड कर दिया। और हम ये मानते हैं, ये माना गया है कि अर्थ इज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अर्थ इज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर वो बॉडी के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके, पहले न्यूट्रल थी, अब उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड हमने यहाँ देखी जो बोर्ड पे लिखी हुई, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, उसके से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। अब जब बच्चों थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, तो थर्मल एनर्जी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेंगे, किसी न किसी को तो मिलेगी, ठीक है। लेट अस सपोज थर्मल एनर्जी किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन ने लेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेता है तो क्या करता है, एक्साइट करता है, तो केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा, ठीक है, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट में चले जाता है, तो ऐसे कुछ होगा फ्रिक्शन, ठीक है। जब थर्मल एनर्जी ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो एक्साइट कर जाएंगे। अब जिस बॉडी से वो एक्साइट कर गए हैं, तो उस बॉडी पे अब क्या होगा, प्लस यानी प्रोटॉन की जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन गए, कहीं कहीं पे जाएंगे, हवा में थोड़ी जाएंगे, ठीक है। दो बॉडी को रब करा, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले ली, तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन ने जिसमें थर्मल एनर्जी ली, वो दूसरी बॉडी में चले। अब जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन गए, उस बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज। Okay, bachalo. So that's it for today. Thank you. See you. Bye. Take care of yourself.